اور آج کا جو پیغام ہے اس کا عنوان ہے سچائی وجہ دشمنی. The truth causes enmity. یعنی سچائی دشمنی کی وجہ بنتا ہے. بات تو آپ کے لیے حیران کن ہوگی لیکن یہ کلام کی بات ہے اور ہم آج شام سیکھیں گے. دیکھیے میرے ساتھ غلطیوں کے نام پولس رسول کا لکھا گیا خط, اس کا 4 باب ہے اور اس کی 16ویں آیت مقدسہ کو ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے, سنیں گے, سمجھیں گے اور سیکھیں گے. تو کیا تم سے سچ بولنے کے سبب سے میں تمہارا دشمن بن گیا. کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. ایک آواز میں کہیں گے آمین. یہ ایک سوال ہے اور سوال کیا ہے؟ کیا تم سے سچ بولنے کے سبب سے میں تمہارا دشمن بن گیا؟ جدت ہر دور میں آتی ہے. لوگ ایڈوانسمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, لوگ ترقی اور بڑھوتی کی منزلیں طے کرتے ہیں, نئی نئی ایجادات, نئے نئے علوم, نئی نئی مہارتیں بھی سیکھتے ہیں, مگر ذہنی حالت کا بدلنا کسی بھی جدت, ترقی, ایجادات, علوم اور مہارتوں سے کہیں بڑھ کر ہے. ہیلیلویہ. اگر انسان ترقی کی منازل کو طے کر لیتا ہے, نئی نئی ایجادات کر لیتا ہے, نئی نئی مہارتیں سیکھ لیتا ہے, نئے نئے علوم سیکھ لیتا ہے, لیکن اس کی ذہنی حالت نہیں بدلتی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ذہنی حالت تمام ادوار میں یکساں رہی ہے. جنج پہلے دور سی آج بھی اسے انجدے ہی نے لوگ بدلتے نہیں ہیں. انسان اپنی موجودہ زندگی میں سب کچھ پا لینے کے لیے تمام اقدام کرتا ہے کہ کوئی شے رہ نہ جاوے. ہم وہ سب کچھ کریں جو دنیا میں ہوتا ہے, ہم وہ سب کچھ پا لیں جو دنیا میں موجود ہے. رائٹ؟ وہ مثبت ہو یا منفی ہو, انسان اپنی موجودہ زندگی میں تمام معاملات کے متعلق بڑا سنجیدہ ہے, لیکن آنے والی زندگی کے متعلق غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے. اور اگر آپ کسی ایسے شخص سے جو دنیاوی زندگی, جسمانی زندگی اور جسم کے کاموں کو تو بڑی سنجیدگی سے انجام دیتا ہے, مگر روحانی زندگی اور آنے والی زندگی کے متعلق غیر سنجیدہ ہے, یہ بات پوچھیں یا اس کو یہ بتائیں کہ اگر وہ آنے والی زندگی کے متعلق یا اپنی روحانی زندگی کے متعلق فکر مند نہ ہوا تو ایک بھیانک, ہولناک ہلاکت اس کی منتظر ہے. اگر وہ یسوع مسیح پر ایمان نہ لایا, اگر اس نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہ کیا, تو وہ ہمیشہ کی موت کے حوالے کر دیا جائے گا. تو لٹرلی وہ بندہ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دے گا, آپ سے ناراضگی کا اظہار کرے گا, آپ کو برا جانے گا اور آپ سے کبھی تعلق نہیں رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے سچائی کو اس پر ظاہر کیا ہے, آپ نے سچائی ریویل کی ہے اس شخص پر. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ سچائی سننے کے لیے آج کوئی شخص تیار نہیں ہے. تسی کسی نال گل تے کر کے ویکھو, تسی جنی دیر تک لوکاں دے نال انہاں دے مطلب دی گل کرو گے, انہاں دے حق دی گل کرو گے, او انٹرسٹ بھی لین گے, گل بھی غور نال سنن گے, تے جتے تسی انہاں دی اصلاح کرو گے, جہاں آپ ان کی کریکشن کریں گے, جہاں آپ ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے, انہاں دے منہ بگڑ جاتے ہیں, وہ غصے میں آ جاتے ہیں, وہ اچھا محسوس نہیں کرتے, اور نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ ملے, وہ آپ سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہ رکھیں. کیونکہ سچائی کو سننا, سچائی سے واقف ہونا اور سچائی کو پا لینا آسان نہیں ہے. یہ مشکل کام ہے, یہ مشکل کام ہے.
लोग हमेशा नूर से बढ़कर तारीकी को पसंद करते हैं और तारीकी के कामों को बढ़ावा देते हैं। जरा पढ़िए यूहन्ना की इंजील, उसका 3 बाब है और उसकी 19वीं और 20वीं 2 आयत। क्या फरमाते हैं खुदावंद यीशु यहां पर? और सजा के हुक्म का सबब ये है, सुने, यीशु ने कहा सजा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया, नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को और नूर आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा से पसंद किया, ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम इसलिए बुरे कि थे, उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता क्योंकि है जो कोई बदी करता है और नूर से दुश्मनी रखता और है नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। हालेलुया। सुनिए, उसके कामों पर मलामत की जाए। इस वास्ते वो ताड़े नाल ही नहीं बैठेंगे, वो आपको अवॉइड करेंगे। और आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लोग सच्चे लोगों को अवॉइड करते हैं, क्यों लोग सच्चे लोगों से नफरत करते हैं, क्यों सच्चे लोगों की इस दुनिया में कोई कदर नहीं की जाती, क्यों सच्चे लोगों को लोग किसी खाते में नहीं गिनते। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। यीशु ने क्या फरमाया? लोग तारीकी को नूर से ज्यादा और नूर के पास नहीं आते, इस डर से कि उनके काम जाहिर हो जाएंगे, उनके कामों पर मलामत होगी। सुनिए, हमें बतौर मसीही नूर में चलना है, भलाई करनी है, सच बोलना है और तारीकी के कामों पर मलामत करनी है। आमीन। पौलुस इफिसियों 5:11 में कहते हैं, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। कभी सच को झूठ और झूठ को सच ना कहें। सच सच ही हुंदा है ते झूठ झूठ ही हुंदा है, राइट? हम बहुत दफा हमने लोगों को देखा है कि वो झूठ को भी सच इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो चाहते नहीं कि हमारी पॉपुलैरिटी में फर्क पड़े, लोग हमें बुरा जाने, लोग हमें अवॉइड करें, लोग हमें पसंद ना करें, इसलिए वो साथ दे देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन जब आप सच पर डटे रहते हैं, जब आप सच्चाई का साथ देते हैं, जब आपकी जिंदगी में से नूर रिफ्लेक्ट होता है, तो फिर क्या होता है? इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप लोगों से दुश्मनी ले रहे हैं या आप किसी के दुश्मन हैं, हरगिज नहीं। ये तो आपके अंदर फिक्रमंदी है जो आप दूसरों के लिए रखते हैं, ताकि कोई शख्स जहन्नम का ईंधन ना बन जाए। आप लोगों के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि लोग आपको अपना दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं। आप जिसकी तरबियत करेंगे वो आपको अपना दुश्मन समझने लगेगा, ठीक है? बहुत दफा हमने देखा है कि अगर पासवान किसी को मना कर देना कि जी ये बरसियां करनियां बंद कर दो, ये खुदा दे कलाम दे मुताबिक नहीं, ते आइंदा उस पादरी नहीं सद्या जाएगा। इसे तरह ही अदनान साहब वो दूजे ਨੂੰ बुला लेंदे ने कि ए भाई जी इतराज करते आ, दूसरे ਨੂੰ बुला लो ਜਿਹੜੇ इतराज नहीं करते। समझ रहे मेरी बात? जो रोकता है, जो मना करता है, वो बुरा लगता है, क्योंकि लोग तरबियत पाना नहीं चाहते। आज सुबह हम यही सीख रहे थे। खुदा ने दाऊद से कहा कि मैं तुझे सलाह दूंगा, मैं तेरी तरबियत करूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी, मैं तुझे सिखाऊंगा। हालेलुया। और शुरू में मैंने कहा था कि दुनिया में वो कामयाब शख्स है जिसका उस्ताद खुदा है, जिसका सिखाने वाला खुदा है, जिसकी तरबियत, जिसकी तंबीह करने वाला खुदा है, वो दुनिया में मुबारक शख्स है। हालेलुया। लेकिन लोग तरबियत पाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर
कैपेसिटी नहीं होती सच्चाई का सामना करने की। गलतिया की कलीसिया के लिए भी उस सच्चाई का सामना करना खासा मुश्किल था जो पौलुस ने इन पर रिवील की, और जिसे पौलुस ने बड़ी दलेरी के साथ बयान किया, मगर उनके नामुनासिब रवैये पर। मैं आगे जाके आपको बताता हूं इन्होंने क्या किया था पौलुस के साथ। नामुनासिब रवैया उसने पौलुस को दुखी कर दिया, और बड़े दुख के साथ पौलुस ने यह सवाल उठाया जो एक रिटोरिकल क्वेश्चन था। और क्या क्वेश्चन था ये, हमने मरकजी आयत के तौर पर पढ़ा है, तो क्या तुमसे सच बोलने के सबब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया? मैं ऐसे गालची ताड़ा दुश्मन बन गया कि मैं तुम्हें सच्चाई बखान दिया हूं, मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूं। अगर किसी ने कहा जाए ना भाई जी ताड़ी जड़ी खिदमत है वो दुआ करना है, तो तुसी दुआ करया करो, तो इन्ने च बिगड़ जाते हैं। कहणगे लो जी सानू इन्होंने कहा जी तुसी सिर्फ दुआ ही करन जोगे, असी नहीं कलाम सुना सकते। ठीक। और आजकल तो लोगों ने पखंड फड़िया होया है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि अगर सब पादरी बन जाएंगे, सब खादम बन जाएंगे, तो फिर कलीसिया कौन होगी? कौन सिखाएगा? तो पादरी तो सीखते नहीं एक दूसरे को। पूरी दुनिया में सेमिनार्स होते हैं, लोग जाते हैं, पासवान जाते हैं। पाकिस्तान च ए मर्ज है कि इतने सेमिनार होंगे ने, तो सेमिनार च फिर कलीसिया ही बैठी होती है, क्योंकि पासवान सीखते नहीं हैं, ना एक दूसरे से सीखते हैं और ना एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं, मानते नहीं एक दूसरे को। ठीक, मानते नहीं एक दूसरे को। पौलुस के साथ ना रवा रवैया उसने पौलुस को दुखी किया, और पौलुस को यह सवाल करना पड़ा, तो क्या तुमसे सच बोलने के सबब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया? फिक्रमंदी क्या थी पौलुस की? सुनिए गलतियों 4 बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत मुकद्दसा तक सुनिए इस बात को। लेकिन उस वक्त खुदा से नावाकिफ होकर, उस वक्त खुदा से नावाकिफ होकर तुम उन माबूदों की गुलामी में थे। ये फिक्रमंदी थी पौलुस की। ते सुनो मेरी गल, जो ਤੁਹਾਡੇ अंदर किसी की फिक्रमंदी होंदी है ना, फिर तुसी अगले का दिल नहीं रखते। और सच्चा बंदा वो होता है जो आप के जो भी आपकी लाइफ के अंदर मसाइल चल रहे हैं उसको आपके साथ डिस्कस करे। तो जे एवं झूठियां तारीफा करी जाए ना, तो फिर वो ਤੁਹਾਡੇ नाल मुखलस नहीं है। मुखलस वो है जो आप पर आपकी कमजोरियों को रिवील भी करे और फिर उसके ऊपर मरहम भी लगाए, उसमें से निकाले, उसमें से निकलने का आपको रास्ता दिखाए, आपके लिए शफाअत करे, आपके लिए आंसू बहाए, आपके लिए फिक्रमंदी रखे। वो बंदा मुखलस है। ते जेड़ा तुहाडे गलत करन ते भी तुहानू दाद दे रहा ना, बहुत अच्छे, कीप इट अप, लगे रहो, वो बंदा मुखलस नहीं है। फिर तुहाडे नाल वो तुहाडी तबीयत खराब कर रहा है, वो तुहाडी तरबियत खराब कर रहा है। तुसी जिथे है वो तुहानू उत्थे ट्यून कर रहा है कि इत्थे ही पक्के हो जाओ, तो तुसी सारी जिंदगी बगावत ते हटदर्मी ते सरकशी का शिकार रहो। और ऐसे लोग कभी तरक्की नहीं करते। पौलुस की फिक्रमंदी सुनिए जी भाई, पढ़िए। लेकिन उस वक्त खुदा से नावाकिफ होकर, लेकिन उस वक्त खुदा से नावाकिफ होकर तुम उन माबूदों की गुलामी में थे, तुम उन माबूदों की गुलामी में थे जो अपनी जात से खुदा नहीं, जो अपनी जात से खुदा नहीं, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तो तुम उन ज़ईफ और निकम्मी और इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रजू होते हो, जिनको दोबारा गुलामी करना चाहते हो, जिनकी दोबारा गुलामी करना चाहते हो। यह था पौलुस का कंसर्न कि इन्नी मेहनत करके मैं तुहानू उथों कढ के ले आंदा है, तुसी फिर भज उधर ही जान रहे हो।
कितनी मेहनत से खुदा के खादिम आप तक खुदा के कलाम को पहुंचाते हैं। वो खुदा के भेदों को खुदा के दिल से निकाल कर लाते हैं, खुदा के हुजूर से लेते हैं। आप तक मुकाशफों को पहुंचाने के लिए वो घुटनों के बल खुदा के हुजूर रोते हैं, आंसू बहाते हैं और मुकाशफे मांगते हैं। ते तुसी ऐसी मुकाशफियां दी बेकदरी करते हो कि इधरों कलाम सुनते हो तो इधरों कर देते हो। हम अपने आप को दुरुस्ती नहीं करना चाहते। यही हाल गलतिया की कलीसिया का था। पौलुस की ये फिक्रमंदी थी। वो कहता है जहां से निकले हो वहां पर फिर वापस जाते हो। तानू लख वारी इत्थे सिखाया जाए कि तीसरे दी इबादत नहीं करनी, लोकी फिर नहीं मुड़दे। 40वें दी इबादत नहीं करनी, लोकी फिर नहीं मुड़दे। ठीक, मेमोरियल सर्विस बंद कर दो, कलाम दे मुताबिक नहीं है। फिर भी 10 देगां पका के कर्जा चुक के रिश्तेदारां नूं खुश करना जरूरी है। वो जान लग्या फिर कह देंगे जी लूण बहुत पाया सी। हाँ जी, ते की फायदा तुहाडियां 10 देगां दा जड़ियां तुसी औखियां हो के पकाइयां, कर्जा चुक के पकाइयां, वेलणे च बांह आई सी उदों। हाँ जी, ते गल्लां फिर अगले तुहानूं कर गए ने। ये वो फरसूदा निकम्मी बातें हैं जिनमें से अभी तक हम निकलने के लिए तैयार नहीं है। ते जे कोई सानू इहदे बारे च दस दवे, दुरुस्त तालीम दे दे, हमारी करैक्शन करने की कोशिश करे, हमारी तरबियत करने की कोशिश करे, तो फिर सानू वो बंदा वैसे ही जहर वर्गा लगता है। हाँ जी, हम कहते हैं जी ऐ पादरी नूं रहन दो, इनू ते गल नहीं करता, सानू किसी होर नूं बुला लो। हाँ जी, जड़ा मना नहीं करता, जिहदे नाल साडी बनदी है, जिसके साथ हमारी केमिस्ट्री मिलती है। वाह, 10वीं और 11वीं भी पढ़े। तुम दिनों और महीनों और मुकर्ररा वक्तों और बरसों को मानते हो। मुझे तुम्हारी बाबत डर पौलुस है। कहते हैं मुझे तुम्हारी बाबत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत मैंने तुम पर की है बेफायदा जाए। पौलुस कहते हैं मुझे तुम्हारी बाबत डर है कि जो मेहनत मैंने तुम पर की है बेफायदा ना जाए। उधरों लोकी विआहां ते पहले दुआ करा लैणगे ते नाल ही जैंजी मीटिंग खत्म होएगी ते ओह ना डीजे लग जाता, फिर उच्ची आवाज, फिर शराबां भी चलदियां, फिर नाचे टापे भी चलते, फिर सारा कुछ ही हुंदा। लेकिन हम सुधरते नहीं हैं। पौलुस की फिक्रमंदी, इस फिक्रमंदी ने लोगों को उसका दुश्मन बना दिया। इस फिक्रमंदी ने कलीसिया को उसका दुश्मन बना दिया। जब लोगों से कहा जाता है भाई जी सीखो खुदा दे कलाम नूं, तानू खिदमत करन दा शौक है, बड़ी अच्छी गल है, लेकिन कलाम नूं सीखो, ते उन्हां नूं बुरा लगता है। कई बड़े बड़े हवाले देणगे कि लो जी वो फलाने ने कित्थों सीखिया सी, मूसा ने किहड़ी सैमिनरी कीती सी, वो कीती सी 40 साल बियाबान में खुदा ने उसको टीच किया था, खुदा ने उसको सिखाया था। तुसी कलाम ते पढ़ो किते चज नाल, तुहाडी अकल दे दरीचे खुलन। कहणगे शागिर्दां ने कितने सेमिनरी की थी। अरे यीशु के साथ उन्होंने 3 साल सीखा था यीशु से। लोग हर उस गल का जवाब देने की कोशिश करते हैं जड़ा पुठा काम उन्होंने करना होता है, उसके दलाइल भी उनके पास होते हैं। फिर वो सुबह वाली बात कि सलाह पुठे लोगों को लेंदे ने, जिदी अपनी मत वजी हुंदी उहदे को सलाह लैंदे ने, भाई जी की करना चाहिए। वो ऐसी राय पांदा है, तबाही ते बर्बादी हो जाती है। कई कहेंगे दीन ते दुनिया नाल नाल ही है। ना हो, कलाम में लिखा है या दुनिया से मोहब्बत रखो या यूहन्ना रसूल इसके बारे में क्या कहते हैं, ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना दुनिया की चीज उससे, क्योंकि जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है वो
खुदा का दुश्मन है, खुदा से अदावत करता है। तो फिर दीन ते दुनिया वाला तो सीन रह ही नहीं गया, फिर तो किसी एक का चुनाव करना होगा। पौलुस के साथ दुश्मनी थी लोगों की। पौलुस उस कलीसिया से मोहब्बत करता था। मैं फिर बता रहा हूं, आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आप जिसके लिए फिक्रमंद होते हैं, आप उसकी गलतियां उसको जरूर बताएंगे। तो जे तुसी नहीं दस दे तो फिर तुसी मोहब्बत नहीं करते, फिर तुसी वक्त जाया करते पे हो, फिर आप टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि जिससे आपको मोहब्बत है, आप उसके लिए दुआ भी करेंगे और उसकी कोताहियां भी उसको बताएंगे। पौलुस मोहब्बत करता था इस कलीसिया से, इसीलिए उनकी भलाई चाहता था और उनको सच्चाई से बहरावर करना चाहता था। लोग उस वक्त भी तरबियत को नापसंद करते थे, लोग आज भी तरबियत को नापसंद करते हैं। राइट? अब इनका क्या मनफी रवैया था, जरा सुनिए। चौथा बाब है और इसकी 12वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक पौलुस ने तरबियत की है। पौलुस ने जो जो खामियां उनके अंदर मौजूद थी, जो जो उनके अंदर एरर्स मौजूद थे, पौलुस उनको निकाल कर बाहर लाया है। और पौलुस ने उनको हाईलाइट किया है कि भाई जी ताड़े अंदर एवी 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 ये सारियां गलतियां ने, इन्हां नूं ठीक करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बाबत डर है कि जो मेहनत मैंने तुम पर की है बेफायदा ना जाए। तानू 5 साल हो गए चर्च आंदियां, ताड़े सिगरट ही नहीं छुट्टे हाले तक। कई कहणगे हौली हौली छड्डण डे आ। भाई साहब जी पहले 2 डब्बियां पीवी दियां सी, हुण 1 ते आ गए हैं। हां जी, ਜਿਹੜੇ 1 ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਾਓ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, केड़ी कमिटमेंट है। सुनिए जरा, पौलुस ने उनकी तरबियत की है, लेकिन उनका मनफी रवैया क्या था? ए भाइयों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि मेरी मानिद हो जाओ, मेरी मानिद हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी मानिद हूं, मैं भी तुम्हारी मानिद हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। पौलुस कहना मैनू तुहाडे नाल शख्सी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुसी किहड़ा मेरा प्लाट अपने नां करा लिया जिहड़ा मैं तुहाडे नाल लड़दा फिरां? तुसी किहड़ा मेरा नुकसान कीता जिहड़ा मैं तुहाडे नाल? मैनू तुहाडे नाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शख्सी मसला नहीं है मुझे आपके साथ, कोई ग्रज नहीं है मेरे अंदर आपके लिए, कोई नफरत नहीं है आपके लिए। लेकिन है क्या? बल्कि तुम जानते हो कि मैंने पहली दफा जिस्म की कमजोरी के सबब से तुमको खुशखबरी सुनाई थी, और तुमने मेरी उस जिस्मानी हालत जब पहली दफा पौलुस ने इन तक खुशखबरी को पहुंचाया था, पौलुस कमजोरी की हालत में थे। क्योंकि ये वो शख्स है, मैं आज भी बता रहा था एक जगह पर कि पौलुस ने अपनी तब्दीली के बाद 35 साल खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत की है और मुख्तलिफ कलीसियाएं कायम की। कितने साल? 35 साल। और उन 35 सालों में 32 साल पौलुस ने यीशु मसीह नासरी की खातिर दुख उठाए। हालेलुया। कितने साल दुख उठाए? कितने साल? 32 साल। इत्थे तो 1 घंटा को मुसीबत आ जाए ना तो साड़ी जान ते बन जाती है। हाँ जी, तो कई वैसे ही होर रावां लभदे हुंदे आ। समझ आ रही मेरी बात की? जादूगर तवीज टूने टोटके के पीछे भागते हैं। इसने दुख उठाए। कई कहणगे कोई सियाणा दसो इस मुसीबत चो कड्डे सानू। यीशु नालों वध सियाणा केड़ा जे? हालेलुया। वो आपके दिलों के भेदों को जानता है। ये वो है जिसने आपकी खातिर कफारा दिया है, जान दी है। हालेलुया। तुसी 1 घंटा मुसीबत चो लंघ गए हो तो तुहाडी जान ते बन गई। 32 साल पौलुस ने दुख उठाए हैं मसीह की खातिर, और ये शख्स कमजोरी की हालत में भी अंजील सुनाने से दरेग नहीं करता था।
انجیل سنانے سے نہیں شرماتا تھا. اب دیکھیں پولس نے ان پر دکھ کی حالت میں یہ بات ریویل کی ہے. پولس کہتے ہیں جب پہلی دفعہ میں نے تمہیں خوشخبری پہنچائی, تمہیں کلام سنایا, تو اس وقت میں جسمانی طور پر کمزور تھا. آگے, اور تم نے میری اس جسمانی حالت کو, اور تم نے میری اس جسمانی حالت کو, جو تمہاری آزمائش کا باعث تھی, جو تمہاری آزمائش کا باعث تھی, نہ حقیر جانا, نہ حقیر جانا, نہ اس سے نفرت کی, نہ اس سے نفرت کی, اور خدا کے فرشتہ, اور خدا کے فرشتے, بلکہ مسیح یسوع کی مانند مجھے مان لیا. مجھے مان لیا. بس تمہارا وہ خوشی منانا کہاں گیا؟ میں تمہارا گواہ ہوں, میں تمہارا گواہ ہوں. اگر ہو سکتا دے دیتے, تو تم اپنی آنکھیں بھی نکال کر مجھے دے دیتے. او واو, یہ ایسی کلیسیا تھی, جان دیتی تھی پولس پر. کمزوری کی حالت میں قبول کیا تھا پولس کو انہوں نے, اور حقیر نہیں جانا, اور پولس کو انہوں نے خدا کے فرشتے کے طور پر قبول کیا, اور یسوع مسیح کی مانند قبول کیا. پولس کہتا ہے تمہاری وہ خوشی کہاں گئی؟ تسی جتھے لوکاں دی تربیت کرو گے اتھے انہوں نے اپنے دشمن بناؤ گے. لیکن ہمیں سچائی پر ڈٹے رہنا ہے. آمین. پولس وہ خادم ہے جس نے 35 سال سرو کیا خداوند یسوع مسیح کو, اور روم میں اس کا سر قلم کر دیا گیا. انہیں تون لوا لی لیکن سچائی تو نہیں پھریا. ہیلیلویا. یہ ہے حقیقی محبت, یہ ہے حقیقی محبت. پولس کہتے ہیں تمہارا وہ خوشی منانا کہاں گیا؟ کتھے چل گیا؟ کتھے گئیاں تاڑیاں خوشیاں؟ میں تاڑی کریکشن کیتی ہے, تاڑی تربیت کیتی ہے, تے تسی بگڑ گئے ہو. واو واو. اب میں تمہیں تمہارا دشمن لگتا ہوں. یسوع یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں کہتے ہیں اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے عداوت رکھی. اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی, لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے, اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے. ہن سمجھ آئی ہے لوکی کیوں مسیحاں نو چنگے نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ہم یسوع کے نام سے کہلاتے ہیں. ہیلیلویا. ہم یسوع کے نام سے کہلاتے ہیں. اور خداوند یسوع نے متی کی انجیل میں فرمایا, دیکھیے میرے ساتھ, متی کی انجیل اور اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 11ویں آیت سے پڑھیے بھائی آکاش. جب میرے سبب سے لوگ تم پر, یسوع نے کہا جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا, کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا. یسوع نے بھی ستایا ہے, نبیاں نے بھی ستایا ہے. تے جے مسیحاں نو ستا لیندے نے تے پھر کیڑی گل ہے؟ کیونکہ مسیحوں کے پاس وہ ہے جو دنیا کے پاس نہیں ہے. اور کیا ہے مسیحوں کے پاس؟ مسیحوں کے پاس صداقت کا کلام ہے, سچائی کا کلام ہے, گواہی کا کلام ہے, جسے کائنات کی کوئی بھی چیز بدل نہیں سکتی. آمین. ہم سچائی کو لیے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. سچائی راہ رہائی. ہیلیلویا. ٹروتھ از دا وے ٹو ڈیلیورنس. یسوع نے کہا تم سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا, اور بائبل مقدس بھری پڑی ہے ایسی مثالوں کے ساتھ جن نبیوں کو ستایا گیا. یہاں پر 2 نبیوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا
तवारीख की दूसरी किताब है, उसका 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक, यहां पर आसा बादशाह का जिक्र हुआ है। आसा बादशाह, और ये यहूदा का बादशाह था, राइट। और जब इसने खुदा की नाफरमानी की और अपनी मन मर्जी पर उतर आया, तो क्या हुआ कि खुदा का एक नबी जिसका नाम हनानी था, वो इसके पास आया और उसने इसका कसूर इसको बताया, आसा बादशाह को। और आसा बादशाह ने गुस्से में आकर, तैश में आकर कि ये कौन होता है जो मेरी बदियां मुझ पर जाहिर कर रहा है, वो सच्चाई की बर्दाश्त ना कर पाया और उसने नबी को कैद खाने में डाल दिया। अब नबी को तो कैद खाने में उसने डाल दिया, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, उसके पैर के ऊपर एक जख्म हो गया। और कलाम में लिखा है, आइए देख लेते हैं इसको। कलाम में लिखा है कि उसने खुदा से रुजू नहीं किया, वो खुदा की तरफ रुजू नहीं लाया, बल्कि उसने क्या किया, सुनिए। दूसरा तवारीख 16वां बाब है और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और आसा की सल्तनत के 39वें वर्ष उसके पांव में एक रोग लगा और वो रोग बहुत बढ़ गया, तो भी अपनी बीमारी में वो खुदावंद का तालिब नहीं बल्कि तबीबों का खाहा हुआ और नतीजतन मर गया। सच्चाई की बर्दाश्त नहीं की, नबी नु सुट दिता सी ने जेल च, कैद खाने च, सताया गया है नबियों को, राइट। एक और मिसाल, अखयब, एजिबल का शोहर, ये इस्राएल का बादशाह था, सामरिया का रहने वाला। इसको एलिया से भी तकलीफ थी, एलिया से भी नफरत थी, खुदा के नबी से। और एलिया के बाद एक और नबी था जिससे इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, और उसका नाम था मिकाया नबी। अब इस स्टोरी में, इसको मैं शॉर्टली आपको बताऊंगा। यहूशफत जो यहूदा का बादशाह था, अखयब ने उससे कहा कि तू आ और हम रामात जलाद को चलें और उन पर हमला करें। तो यहूशफत खुदा की पैरवी करने वाला शख्स था, ये खुदा परस्त, खुदा तरस बादशाह था। और इसने अखयब से कहा कि क्या तेरे यहां कोई नबी मौजूद है, ताकि हम पहले उससे पूछ लें कि आया हमें इस लड़ाई के लिए जाना चाहिए या नहीं। तो अखयब ने क्या जवाब दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तवारीख की दूसरी किताब है और उसका 18वां बाब है, और इसको पहली आयत से लेकर आपने 27वीं आयत तक पढ़ना है। यह हवाला मैं आपको दे रहा हूं, दूसरा तवारीख 18वां बाब पहली 27 आयत, इसको घर जाकर जरूर आप पढ़िएगा। तो क्या हुआ, उसने पूछा यहूशफत ने कि क्या तेरे यहां कोई नबी है, हम उससे पूछ कर जाएंगे, क्योंकि वो खुदा से दरियाफ्त करके हमें बताएगा आया हमें यह कदम उठाना चाहिए या नहीं। तो अखयब का जवाब सुनिए। अखयब कहता है हाँ है, लेकिन मुझे उससे नफरत है, आई डोंट लाइक हिम। वो जदों भी मेरे सामने आंदा है वो हमेशा मेरी जात दे खिलाफ गल करता है, वो हमेशा मेरी पर्सनैलिटी के खिलाफ बात करता है, वो कभी भी मेरे हक में नहीं बोलता। तू अपनी रविशां ठीक कर ला, खुदा आप ही तेरे मुतल्लिक सही कहना शुरू कर देगा। तेरी रविशें ठीक नहीं है और तू खुदा के खादिम को लानत दे रहा है, उससे नफरत कर रहा है। आज भी लोग मौजूद ने, मैंने शुरू में ये बात की थी कि दौर बदल जाते ने, इजादात हुंदियां ने, अलूम आंदे ने, लेकिन ज़हनी हालत लोकां दी नहीं जे बदलती है। फिर क्या हुआ, यहूशफत ने कहा है तुझे उससे नफरत है तो क्या उसको बुला ताकि वो हमारे लिए बोले। और जिस शख्स को भेजा गया है मिकाया को बुलाने के लिए, उसने जाकर मिकाया से कहा मिकाया उथे अखयब दे पहले ही
नबी खलोते हुए ने, और वो उसको इनकरेज कर रहे हैं कि तू जंग के लिए जा, तू जीत कर आएगा, राइट? अब तू उसके बारे में क्या कहेगा? तो मिकाया ने साफ अल्फाज में कहा, मिकाया ने कहा, 13वीं आयत है, खुदावंद की हयात की कसम, जो कुछ मेरा खुदा फरमाएगा मैं वही कहूंगा, मैं झूठ का सहारा नहीं लेता, मैं कंप्रोमाइज नहीं करता, मैं वो कहता हूं जो खुदा कहता है और वो नहीं कहता जो लोग कहते हैं। सुन रहे हैं मेरी बात? फिर क्या हुआ है? जब मिकाया वहां पर गया है और उसने देखा कि इतने नबी वो सारे के सारे चापलूसी कर रहे हैं, वो सारे के सारे अखियब के लिए खुशामदें कर रहे हैं अखियब की, और उसके लिए नबूवतें कर रहे हैं, और उसको कह रहे हैं तू जा, तू जीत कर आएगा। तो जब मिकाया वहां पर पहुंचा है तो उसने पूछा है, मिकाया तू क्या कहता है? तो मिकाया कहता है, ठीक है तू जा, आप जीत के आ जाएगा। तो अखियब जानता था, देखो जो अक्सर पादरी खालिद साहब बात करते हैं कि लोगों को आपके इल्म से मसला हो सकता है, लोगों को आपकी जात से मसला हो सकता है, लोगों को आपकी शख्सियत से मसला हो सकता है, लोगों को आपके डॉक्ट्रिन से मसला हो सकता है, लेकिन आपकी इनॉइंटिंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अखियब अंदरों मुनसफ सी, ओनू पता सी कि नहीं हाले गल सही नहीं दसी मिकाया ने, क्योंकि जो बात खुदा इसको बताएगा वो ही जेन्युइन और हकीकी बात है, हाले मेरा दिल रखन दे है। उसने कहा नहीं मिकाया ऐ गल ना कर, ओ गल कर जड़ी रब ने दसी है। तो फिर मिकाया ने अपना मुंह खोला और उसने कहा, मेरा खुदा फरमाता है, इस्राइल का कुदूस कहता है कि तू इस जंग में जाएगा और मर कर वापस आएगा, तेरी लाश वापस आएगी, तू जिंदा नहीं आएगा। तो इस बात पर फिर अखियब को गुस्सा आ गया, फिर उसको गुस्सा आया है, और जब गुस्सा आया है तो 22वीं आयत में लिखा है, सो देख खुदावंद ने तेरे इन नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह डाली है, और खुदावंद ने तेरे हक में बदी का हुक्म दिया है। और फिर क्या हुआ कि एक शख्स ने उसके मुंह पर चमाटा मारा मिकाया के, और उसको उठाकर उन्होंने कैद खाने में फेंक दिया। 26वीं आयत लिखा, और कहना के बादशाह यूं फरमाता है कि जब तक मैं सलामत वापस ना आऊं, इस आदमी को कैद खाने में रखो और उसे मुसीबत की रोटी और मुसीबत का पानी। लोग आपको टफ टाइम देते हैं ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ नहीं रखा जाता, फिर लोग आपको टफ टाइम देते हैं, फिर लोग आपसे हसद करते हैं। मिकाया ने चूंकि खुदा के कलाम को उसी तरह से बयान किया जिस तरह से खुदा ने उसको दिया था, उसने उसमें अमेजिश नहीं की, उसने उसको एज इट इज अखियब तक पहुंचाया। तो अखियब ने उसको कैद खाने में डाला और कहता है इसको मुसीबत की रोटी और मुसीबत का पानी पिलाना, और तब तक कैद खाने में रखना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, फिर आके मैं इन्हें दसांगा कि तेरी नबूवत झूठी सी। तो सुनिए आगे मिकाया ने क्या कहा है 27वीं आयत में। मिकाया ने कहा, अगर तू कभी सलामत वापस आए तो खुदावंद ने मेरी मार्फत कलाम किया ही नहीं। और उसने कहा, ऐ लोगो तुम सब के सब सुन लो। हालेलुया। मिकाया कहता जे तू वापस आ गया अखियब सलामती दे नाल, ते फिर मेरे नाल रब ने कदी कलाम किया ही नहीं से। हालेलुया। ये जुर्रत और दलेरी हमारे अंदर होनी चाहिए, आमीन, खुदा के कलाम को बयान करने की। पौलुस एक निडर खादिम था, एवं नहीं 32 साल मारा खादियां, एवं नहीं 32 साल मुश्किलात चो नंगया। आज भी वो खुदाम जो मुश्किल हालात में से गुजरते हैं, जो मुखालफतों का सामना करते हैं, जो नापसंदीदगी का शिकार हैं, मैं उनका हौसला बढ़ाना चाहता हूं। आप सच्चाई पर डटे रहें, भले आपकी गर्दन कट जाए। हालेलुया। कभी कंप्रोमाइज ना करें किसी के साथ, कभी कंप्रोमाइज ना करें, क्योंकि सच झूठ नहीं होता और झूठ सच नहीं बन सकता। सच सच है और झूठ झूठ है। आमीन। यूहन्ना 8:32 में खुदावंद यीशु ने फरमाया, पर सच्चाई से वाकिफ होगी और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। आजादी हर शख्स चाहता है,
ہر شخص آزادی پانا چاہتا ہے، مگر سچائی کی کڑواہٹ کو برداشت کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور جو سچائی کو کنفرنٹ کرتا ہے، جو سچائی کا سامنا کرتا ہے، جو ریپینٹنٹ ہوتا ہے، جو اپنی بدذاتی کا اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے، حقیقی معنوں میں سچائی کے وسیلہ سے آزادی پانے کا حقدار بھی وہی ہے۔ اوکے؟ پھر یوحنا 8:36 میں خداوند یسوع نے اس سچائی کا نام بھی بتایا ہے۔ اور کیا کہا ہے خداوند نے؟ وہ سچائی جو آزادی دیتی ہے، وہ سچائی جو رہائی بخشتی ہے، وہ سچائی جو چھٹکارا دیتی ہے، مخلصی دیتی ہے، ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے، اس کے بارے میں یسوع نے کہا اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی ہیلیلویا۔ تو آزادی دینے والا خدا کا بیٹا یسوع ہے، وہی صداقت ہے، وہی سچائی ہے، وہ سچائی جو آزادی دیتی ہے۔ یسوع یوحنا 14:6 میں اپنے متعلق کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے ہیلیلویا۔ جیسس از the personification of the truth. Glory to God. یوحنا 1:14 میں لکھا ہے کلام مجسم ہو اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر۔ یسوع نے کبھی بھی فریسیاں دا ساتھ نہیں سی دیتا، یسوع نے کبھی بھی سردار کاہنوں کا ساتھ، جہاں وہ غلط کرتے تھے یسوع ڈٹ جاتے تھے، یسوع کنفرنٹ کرتے تھے ان کو، جتھے کوئی غلط ہے انہوں دسو پائی جی تسی غلط ہو۔ حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے اگر تو شریر کو گناہ کرتے دیکھے اور اس کو آگاہ نہ کرے تو وہ اپنی اس بدی میں مرے گا، لیکن اس کے خون کی باز پرس خدا کہتا ہے میں تجھ سے کروں گا، کیونکہ تو سچائی سے واقف تھا اور تو نے اس کو نہیں بتایا، تو نے اس کو آگاہ نہ کیا۔ اور پھر لکھا ہے اگر تو شریر کو گناہ کرتا دیکھے اور اس کو آگاہ کر دے لیکن پھر بھی وہ اپنی بدی میں مرے تو خدا تجھے معاف، تو آزاد ہو جائے گا، تو چھوٹ جائے گا۔ سو اس لیے سچائی سے واقف ہونا یہ ایک ذمہ داری والا کام ہے۔ اگر آپ سچائی سے واقف ہیں، اگر آپ نے یسوع مسیح کو پہنا ہے، جانا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اس یسوع کی حقیقت کے بارے میں لوگوں کو بھی بتائیں۔ ہیلیلویا۔ اس کے کلام کی صداقتوں اور سچائیوں کے بارے میں دوسروں کو آگاہ کریں۔ اپنی زندگی ایسے جئیں کہ لوگ امتیاز کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ آپ کے پاس ایسا کیا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ سچائی آپ کو مطمئن رکھتی ہے۔ ہیلیلویا۔ جب آپ کے اندر سچائی ہوتی ہے نا تو آپ کا دل آپ کو الزام نہیں دیتا۔ جب آپ کے اندر سچائی ہوتی ہے تو آپ مطمئن رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ درست سمت میں ہیں، درست ڈائریکشن میں ہیں۔ جس سچائی سے آپ واقف ہیں اسی سچائی کے باعث لوگ آپ سے عداوت رکھتے اور آپ کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہی پولس کے ساتھ ہوا۔ پولس نے اس کلیسیا کی تربیت کی لیکن انہوں نے اس کو ناچیز جانا اور اس کو پسند نہ کیا۔ ڈینزل واشنگٹن ایک اداکار ہوئے ہیں ہالی ووڈ کے، اور پھر ڈینزل نے جب خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا تو اس نے بطور خادم اس کی پیروی کرنا شروع کی اور اس نے خدمت کا بیڑا اٹھایا۔ ڈینزل کا ایک کال ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ڈینزل واشنگٹن says, some people will never like you because your spirit irritates their demons. کچھ لوگ آپ کو کبھی بھی پسند اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ کی روح ان کی بدروحوں کو بیزار کرتی ہے، ان کی بدروحوں کو تنگ کرتی ہے۔ جڑیاں بدروحاں دے قبضے چ نے نا ہو تاڈی روح انہاں نوں تنگ کرتی ہے، اس لیے وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے آپ نے بے دل نہیں ہونا ان لوگوں سے جو بیزار ہو کر آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے ہدف کی طرف بڑھتے چلے جانا ہے۔ آمین۔ یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے۔ سچائی پر ہمیشہ قائم رہے،
सच बोलने पर यूहन्ना अस्तबागी का सर कलम कर दिया गया था, स्टिफनस को संसार किया गया, यहां तक कि मां सिवा यूहन्ना के बाकी तमाम रसूलों ने जामे शहादत नोश किया, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं किया, वापस नहीं मुड़े, स्टेप बैक नहीं हुए, बरगश्ता नहीं हुए, बल्कि उन्होंने डट कर मुखालफत का सामना किया, नफरत का सामना किया, अपनी जान भी दे दी। पौलुस फिलिपियों पहला बाब और उसकी 20वीं और 21वीं 2 आयत में कहते हैं, चुनाचे मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूं, बल्कि मेरी कमाल दलेरी के बायस, सुनिए, मेरी कमाल दलेरी के बायस जिस तरह मसीह की ताजीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, उसी तरह अब भी होगी, खा मैं जिंदा रहूं या मरूं, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। हालेलुया। नो लॉस, जस्ट विन विन, जीत ही जीत है। आमीन। जे जिंदा रवांगे ते फिर मसीह दी खिदमत करते रवांगे, ते जे चले जावांगे ते फिर भी नफा है, फिर मसीह के पास होंगे, राइट। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसके कलाम की सच्चाई में आमेजिश करें। जो बात है ना, जान देने तक वफादार रहे, तो उस वफादारी में आपके अंदर यह सच्चाई का कलाम जो नबियों की मार्फत है, जो रसूलों की मार्फत, जो खुदा के पाक रूह की मार्फत आपके अंदर बोया गया है, यह भी शामिल है। और जितनी वफादारी आपको बाकी बातों में दिखानी है, उतनी वफादारी आपको खुदा के कलाम की सच्चाइयों के मुतालिक भी दिखाने की जरूरत है, राइट। हमें खुदावंद यीशु से मोहब्बत रखनी है, हमें लोगों से मोहब्बत रखनी है, मगर लोगों का दिल रखने के लिए झूठ का साथ नहीं देना। जिथे कोई गलत है उथे उन्होंने गलत कहो, और उसके लिए दुआ भी करें, उसकी तरबियत करें। तानू बुरा भी जाननगे, फिर भी तुसी तरबियत करनी है लोगों को। यह दूसरी बात है। पहली बात क्या है? हमें खुदावंद यीशु से मोहब्बत रखनी है, उसके लोगों से मोहब्बत रखनी है, मगर लोगों का दिल रखने के लिए झूठ का साथ नहीं देना। लोगों को आइडियलाइज ना करें, क्योंकि जब आप लोगों को आइडियलाइज करेंगे तो फिर क्या होगा? आप सच्चाई से दूर निकल जाएंगे। खादिमों से इंस्पायर जरूर हुआ करें, खादिम हमारी इंस्पिरेशन होने चाहिए, लेकिन खादिम हमारे लिए आइडल ना बन जाएं कि हम सच्चाई से दूर निकल जाएं, बल्कि मसीह हमेशा हमारा मरकज रहना चाहिए, मसीह हमें हमेशा हमारा आइडियल रहना चाहिए। नंबर 3, तीसरा पॉइंट है, इसके बाद हम दुआ करेंगे। खुदा से खुशखबरी सुनाने और सच को दूसरों तक पहुंचाने की दलेरी मांगने की जरूरत है। आमीन। क्या करने की जरूरत है? खुदा से खुशखबरी सुनाने और दूसरों तक इस खुशखबरी को, इस गवाही को पहुंचाने की दलेरी मांगने की जरूरत है। 2 हवाले पढ़ दें, इसके बाद हम दुआ करेंगे। इफिसियों 6 बाब है, उसकी 19वीं और 20वीं आयत, और फिर रोमियो 1 बाब और उसकी 16वीं आयत। तारीफ है, हालेलुया। और मेरे लिए भी जी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो। सुने, पौलुस कहते हैं मेरे लिए भी दुआ करो ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम सुनाने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करूं, जिसके लिए जंजीरों से जकड़ा हुआ एलची हूं, उसी को ऐसी दलेरी से बयान करूं जैसे बयान करना मुझ पर फर्ज है। ये दलेरी मांगनी है हमें खुदा के हुजूर से, ताकि हम कौमों तक यीशु को पहुंचा सकें। आमीन। बगैर खौफ व खतर। नंबर 2, रोमियो 1 बाब और उसकी 16वीं आयत।
क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। मैं इंजील से नहीं शर्माता। हालेलुया। ये दलेरी हमें चाहिए कि हम इंजील से ना शर्माएं, हम सच बोलने से कतराएं, हम सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल ताबनाक है, जलाली है। इसलिए इस दुनिया में रहकर फिक्रमंद ना हुआ करें कि जब मैं सच्ची गल दस दी तो की होएगा। आप लोगों को बताएं कि यीशु ही अज़ली कलमा है, यीशु ही खुदा का इकलौता बेटा है, यीशु ही खुदा है। वो दुनिया में आया और उसने तजस्सुम लिया और उसने इंसानों के लिए कफारा दिया और वो मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा है और बहुत जल्द कलीसिया को लेने के लिए वापस। यह है सच्चाई और इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएं। आमीन। आइए सरों को झुकाइए, आंखों को बंद करेंगे।